Assalamu alaikum, everybody. I hope you guys are well. Assalamu alaikum, Mursaleen. क्या हाल चाल है? This is AS Physics. जी बिल्कुल. AS करने लगे. Let me just quickly get this thing ready. Assalamu alaikum, Fahad. Assalamu alaikum, Umar. क्या हाल चाल? Mursaleen, 60 में से you should try to score at least 45 plus, inshallah. अगर आप 45 plus आ गए ना, आप छा जाएंगे इंशाल्लाह. 45 plus तो like 45 plus रहना है घर पे. सही जी. मैं जरा इस पेपर को आपकी उसमें भी डाल दूं डिस्क्रिप्शन में. I learned how to do this. Yeah, here it is. ठीक है, just give me 1 second. Let me just take the paper and do this. Link to paper is here. Okay, nice. Yes. Save. Good. Brilliant. All right, good. We're good to go. Let's go back to the channel. Here we are. Assalamu alaikum, Fakhir. Assalamu alaikum, Umar. This is paper 2, February, March 23. Fahil, assalamu alaikum. Welcome, guys. अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, क्या हाल चाल है? Credit goes to Muskan that I have these papers and for the big changes that are happening on my channel. Thank you, Muskan. रोहान this side. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? जवानों, हमने इसका पहला पार्ट तो कर लिया था, if you guys remember. We did the first 3 questions. अब क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 को आगे लेके चलते हैं. सो मैंने पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. प्लीज पेपर पकड़ लो और मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करो. सो लेट्स बिगिन. गेट योर कैलकुलेटर्स आउट. गेट रेडी.
अस्सलाम वालेकुम जज़ा माय जवान, हाउ इज इट गोइंग? क्वेश्चन 4 करते हैं जी. Two blocks slide directly towards each other, U or U, along a frictionless horizontal surface as shown in figure 4.1. The blocks collide and then move as shown. Okay, एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल करते हैं. Block X initially moves to the right with a momentum of 0.37. Block Y initially moves to the left with a momentum of 0.65. After the blocks collide, Block X moves to the left along a central path of momentum of this. Block Y also moves to the left after the collision. So they are not traveling together as one mass. क्या ये बात सबको समझ आई है कि ये दोनों अलग-अलग ट्रैवल कर रहे हैं? Block X has an initial kinetic energy of 0.3 joules. You have to calculate the mass of block X. So everybody knows कि kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और हमारे पास ब्लॉक X का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी है और हमारे पास ब्लॉक X का इनिशियल मोमेंटम भी है. ब्लॉक X का मोमेंटम कितना है? 0.37 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. जवानों इम्प्रूव आता है, मैं अभी यहाँ पे वो कर भी रहा हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों की रिविजन हो जाए. आप सबको पता है कि मोमेंटम जो होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि मैं वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना के लिख सकता हूँ मोमेंटम ओवर मास, करेक्ट? और ये हमने किया हुआ क्लास में, अगर आपको याद हो. अगर आप इसको सही तरह लिख लो तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ m, और v की जगह आप लिख दोगे p ओवर m होल स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 ऑफ m इनटू p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर. ये स्क्वायर और ये m कैंसिल हो गए. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया p स्क्वायर अपॉन 2m. सही है? पहले तो आपको ये चीज आनी चाहिए. पेपर लिंक में डिस्क्रिप्शन में भूल गया हूँ, नहीं मैं डाल दिया है. मुस्कान आ रहा है ना? चेक करो जवानों. कैन यू गाइस, डू यू गाइस सी द पेपर लिंक? पता नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है. It is there. Okay, perfect. So kinetic energy is p square over 2m, and अब kinetic energy है 0.3, momentum है 0.37 whole square over 2m, और अब हम लिखेंगे 2m is equals to 0.37 square divided by 0.3, which is 0.456, and the mass is 0.456 divided by 2, which is 0.23228 आ रहा है actually. मैं इसको 0.23 लिख देता हूँ. Guys, can you confirm that you have this answer 0.23? Jaza, Abdullah, Ahmed, Fahad. I'm assuming you guys are here. Mursaleen, Fakhir. Answer यही निकला है 0.23. शाबाश, कंफर्म करें. Perfect. Jaza का भी आंसर आ गया 0.228. So that confirms. रोहान, मैं एंड में बताता हूँ. Determine the magnitude of the momentum of block Y after the collision. शाबाश. So momentum of block Y निकालना है after the collision. तो अब आप क्या करोगे? आप करोगे law of conservation momentum लगाओगे. m1 u1 plus m2 u2 equals m1 v1 plus m2 v2. m1 u1 कितना है? हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये प्लस लिखोगे 0.37. मुझे बताओ ये जो 0.65 है, अपने पेपर सामने खोल के रखो और मुझे ये बताओ कि 0.65 को प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे? शाबाश. क्या लिखेंगे जवान? इसको माइनस लिखेंगे ना, माइनस 0.65.
is equals to minus 0.13 और minus momentum of object y. Solve करो इसको कैलकुलेटर में. Shabash, well done guys, well done. So 0.37 minus 0.65. Answer is minus 0.28. अब ये plus 0.13 होगा is equals to minus py. So हमारा answer आएगा minus what? It will be minus 0.15. So minus py. 0.41 नहीं होगा अब्दुल्ला, ये उधर जाएगा ना, माइनस 0.13 साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका भी तो डायरेक्शन ऑपोजिट ही है, तो ये माइनस है. मेक सेंस? So your final momentum should be 0.15 kilogram meter per second. Guys, are you with me on this? Brilliant. Well done, Aisha. आगे चलें. Block X exerts an average force of 7.7 Newton on block Y during the collision. Calculate the time that the blocks are in contact with each other. So, जो force X लगा रहा है on block Y during the collision, उसकी वजह से block Y के momentum में change आ रहा है एक certain time में. Does that make sense? जब तक वो टक्कर लगती है तब तक वो उसका मोमेंटम में चेंज आता रहता है, जब टक्कर खत्म होती है मोमेंटम स्टेडी हो जाता है चेंज होने के बाद. अब जो फोर्स है वो है 7.7. मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम. और से सुनना है बात को. सो जवानों 7.7 इज इक्वल्स टू ब्लॉक एक्स का फाइनल मोमेंटम कितना था? वो था माइनस 0.13. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस 0.13. अब ये फॉर्मूला का माइनस आएगा, फॉर्मूला का माइनस आ गया. और इनिशियल मोमेंटम कितना है उस ब्लॉक का? इनिशियल मोमेंटम है 0.37. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लस 0.37 ओवर टाइम. टाइम निकालना है, दैट्स ऑल. So 0.13 plus 0.37, माइनस का साइन इग्नोर कर देना जवानों, ये आ जाएगा 0.5 ओवर 7.7. माइनस साइन इग्नोर कर देना, टाइम निकाल रहे हो. 7.7 पे डिवाइड करो, your answer will be 0.0649, which is 0.065 seconds. शाबाश. Is this done? (0.0649) जिसको आप लिख लोगे 0.065. 2 to 3 SF में आंसर देना है. थैंक यू मुनाहिल, वेल डन रोहान. क्वेश्चन 5 पे आओ जवानों. अभी तक सारे मेरे साथ हैं, कुछ चीज कंफ्यूज तो नहीं कर रही? ठीक है फाखिर, हाँ क्वेश्चन पूछो. फोर्स निकालते हुए वी वोंट इग्नोर माइनस साइन. फोर्स निकालते हुए, हाँ फोर्स निकालते हुए नहीं इग्नोर करना, एंड पे इग्नोर करना है. ये जो मेरा फाइनल आंसर आ गया इसको इग्नोर करना है. ये वाला माइनस नहीं इग्नोर कर सकते, ना ये वाला माइनस इग्नोर कर सकते हैं, वरना तो आंसर गलत हो जाएगा. एंड पे जो माइनस का साइन, जो टाइम नेगेटिव आ रहा है, बस उसको पॉजिटिव लिख देना बस. सही है. चले अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे, 5 पे. A microphone and CRO are connected to analyze a sound wave of frequency 5000 hertz. जवानों, okay. So 5000 hertz से सबसे पहले तो आप टाइम पीरियड निकाल लो. टाइम पीरियड इज 1 over 5000. करें जरा कैलकुलेटर में जी, क्या आता है 1 over 5000 करने के बाद? 5000 इनवर्स 2 into 10 raised to power minus 4 seconds आ गए. ठीक है. अब उसने मांगी है टाइम बेस्ड सेटिंग. टाइम बेस्ड सेटिंग होता है, टाइम बेस्ड सेटिंग
is the value of one box horizontally. It's the value of one box horizontally. एक डब्बा, और एक डब्बा वो खुद डिफाइन करता है, आपने नहीं अपनी तरफ से डिफाइन कर बैठना, वो खुद डिफाइन करेगा. दिस इज वन बॉक्स. तो कितने डब्बे हैं जी? 1 2 3 4. 4 डब्बों में आपकी वेव कंप्लीट हुई है. ये बात समझ आती है सबको? ये जो टाइम पीरियड है वो यहां तक है. आपकी वेव 4 डब्बों में कंप्लीट हुई है. तो टाइम बेस सेटिंग निकालने के लिए यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस टाइम बाय 4. सो डिवाइड बाय 4 करो, आपका आंसर आ जाएगा 5 into 10 raised to power -5 seconds per centimeter. फाइव पॉइंट जीरो लिखिए, क्योंकि हम 2 में जवाब देते हैं. 5.0 into 10⁻⁵ second per centimeter. Got it, everyone? चल, अब कहता है the intensity of sound detected by the microphone is now increased from its initial value of I to a new value of 3I. Frequency is unchanged. Assume that the amplitude of the screen is proportional to the amplitude of the sound wave. Sketch the new trace on the graph. अब देखो, ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि इंटेंसिटी जो होती है that is proportional to amplitude square. Got it? मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर के साथ बढ़ेगा. सो आपने लिखना है I1 over I2 is equals to A1 square over A2 square. With me? I1 over I2 is equals to A1 square over A2 square. जो इनिशियल वेव है जो आपके सामने बनी हुई है इस टाइम पे, उसकी इंटेंसिटी I है. सही है? और जो नई वेव है उसकी इंटेंसिटी 3 टाइम्स है. 3I is equals to, अब जो वेव बनी हुई है ऑलरेडी, लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसका एम्पलीट्यूड हम 1 ले लेते हैं, इसको 1 कहते हैं. हमें A2 निकालना है. A2 कितना होगा? सो ये I और ये I कैंसिल हो जाएंगे. ये बात समझ आती है सबको? ये I और ये I कैंसिल हो जाएंगे. सो 1/3 इज इक्वल टू 1/A2 स्क्वायर. इधर से A2 की वैल्यू निकालो जवानों, जल्दी से. A2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3. जल्दी करें, स्क्वायर रूट 3 करें, आपका आंसर आएगा 1.73 सेंटीमीटर्स या 1.7 सेंटीमीटर्स. अब हमने ढूंढना है 1.7 कहां पे होगा. सो एक डब्बे की वैल्यू क्या है? एक डब्बे की क्या वैल्यू है? 5 बॉक्सेस रिप्रेजेंटिंग 1. एक डब्बे की वैल्यू 0.2. सो इफ आई जूम इन कर लेता हूं. ये है 0.2, 0.4, 0.6, 0.81, 1.2, 1.4, 1.6 और ये 1 है. 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 कहीं यहां पे होगा. दिस इज 1.7. एक ऊपर बनाना है 1.7 और डॉटेड लाइन खींच दें इसके ऊपर 1.7 पे, और एक 1.7 नीचे बनाना है. सो दिस इज -1 ना, -1.2, -1.4, -1.6, -1.7, और इधर भी डॉट लाइन खींच दें. डॉट लाइन में इसलिए खींच दो ताकि हमें पता, हम इस वैल्यू से आगे ना निकले. और उसके बाद क्या करो? उसके बाद सब कुछ वही रखते हुए नया वेव फॉर्म खींच दो. सो यहां से इधर, बैक, ऊपर, नीचे, यहां, बैक. इज दिस क्लियर एवरीवन? हम डायरेक्टली 3 टाइम्स ऊपर नहीं जा सकते. नहीं, एम्पलीट्यूड थोड़ी 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, इंटेंसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है. हमें एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा. ये तरीका भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में पहले भी. शाबाश जवानों, जल्दी करें. सही है जी, क्लियर हो गया सबको? लेट्स मूव ऑन. पार्ट बी. An arrangement for demonstrating interference using light is shown in figure 5.2.
So this is a double slit experiment. Double slit experiment के अंदर आपको पता है फॉर्मूला जो होता है that is x is equals to lambda d over a. आज वैसे मैंने बड़ा ही एक जरूरी सवाल भी सॉल्व किया है ये वाला डबल स्लिट के ऊपर जो आज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें आ रहा है वो जरूर देखना. डबल स्लिट का एमसीक्यू है वीक 2 का जो हमारा वेंसडे का पेपर था उसका. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस. शैजुल जैन इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, उसको छुप के देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब भी वो लाइव आता है तो यूजुअली मैं उसको देख रहा होता हूँ. सर फॉर्मूला में हम ए स्क्वायर को 1/2 लिखेंगे ना, कौन से फॉर्मूला में? Which formula are you talking about? मैंने a2 निकालना था ना, सो मैंने एक स्टेप इधर खाया है. a2 स्क्वायर वाज इक्वल टू 3, फिर मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो a2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और उससे मैंने आंसर निकाल दिया, ये 1.7 आ गया. क्लियर है? x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए. शैजुल ओ लेवल की बारी आने वाली है, तैयार हो ना तुम? द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द लेजर इज 630 नैनोमीटर्स. अच्छा जी, वेवलेंथ गिवन है. Light is incident normally on the double slit. Okay. The separation of the two slits is 3.6 10 minus 4. This is A. Perpendicular distance to the screen is D. Coherent light from the slits form an interference pattern. आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर bright fringes और dark fringes बनते हैं. अभी जो point P है उसने बता दिया this is the central bright fringe. And the distance between two adjacent bright fringes is this. So ये x की वैल्यू गिवन है. अब पहला सवाल वो ये करता है, why a bright fringe is produced by the waves meeting at point P. So in terms of path difference समझाएं कि why is a bright fringe formed at P. P पे क्या होता है? What is the path difference? Path difference at P is कितना? 0, क्योंकि वो सेंटर में है बिल्कुल. जितना डिस्टेंस इधर से ट्रैवल करके आ रहे हो उतना ही डिस्टेंस यहां से ट्रैवल करके आ रहे हो. सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो दोनों जगहों से, तो दोनों पैथ्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होगा? इसको पैथ बोलते हैं, इसको पैथ बोलते हैं. दोनों पैथ्स के दरमियान में डिफरेंस क्या होगा? दोनों पैथ्स के दरमियान में डिफरेंस जो है वो 0 होगा. और चूंकि वो पैथ डिफरेंस 0 होगा इसलिए हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. Hence, constructive interference is happening. Coherent का लफ्ज ये नहीं बताता कि you are having constructive or destructive. Coherent का मतलब है वो इंटरफेयर करने के काबिल है. फहद, coherent क्या मतलब है? कि वो इंटरफेयर कर सकती है. अगर coherent नहीं होगी तो इंटरफेयर ही नहीं करेगी. अब coherent होने के बाद हमें फैसला करना होता है कि क्या वो इंटरफेयर कर रही है कंस्ट्रक्टिवली या वो इंटरफेयर कर रही है डिस्ट्रक्टिवली. सो उसको निकालने के लिए हमें पैथ डिफरेंस देखना पड़ता है. वेव्स की जाके वीडियोस में इस टॉपिक को सही तरह फिर से देखो, सही है, ताकि पता चले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है. उसके लिए पैथ डिफरेंस टू लैम्डा रेशो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि पैथ डिफरेंस टू लैम्डा रेशो शुड बी अ होल नंबर n, तब जाके वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है. और अगर पैथ डिफरेंस टू लैम्डा रेशो जो है वो एक फ्रैक्शन आ जाए फिर क्या होता है? पैथ डिफरेंस टू लैम्डा रेशो जवानो अगर एक फ्रैक्शन आ जाए फिर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? दिस इज कंस्ट्रक्टिव, दिस इज डिस्ट्रक्टिव. गॉट इट? एंड दिस इज व्हेन द टू सोर्सेज आर इन फेज. अब इसका एक और भी केस है बट मैं उस पर भी जाऊंगा नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन हम हट जाएंगे. बट आपके ज़हन में आ जाने अपने नोट्स खोल के देखें, आपको वो मिल जाएगा. ये सही है. तो पॉइंट ये है कि आपको चीजें याद दहानी हो जाए कि क्या क्या चीजें पड़ी हुई. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस d. सो गाइस, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला x इज इक्वल टू लैम्डा d ओवर a. वी हैव टू कैलकुलेट d. x की वैल्यू हमारे पास है 4 into 10⁻³ - 3 इज इक्वल्स टू वेवलेंथ है 630 नैनोमीटर, 630 10⁻⁹.
डिस्टेंस डी हमें निकालना है, और ये जो स्लिट सेपरेशन है दैट इज 3.6 into 10⁻⁻⁴. सो यहां से डी की वैल्यू निकालें, शाबाश. सो 4 into 10⁻³ times 3.6 into 10⁻⁴ divided by 630 into 10⁻⁹. The distance that you will get is 2.29 meters. Well done, Fahad. Exactly. बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल से भूलना नहीं है. और उसके फाद उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि तुम जो बात कर रहे हो उसके क्वेश्चन निकाल लो, टॉपिकल खोलो, उसके क्वेश्चन ढूंढो कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, मिल जाएगा आपको. वो कर लेंगे एक दफा आपने, और वो नोट्स में ऐड कर लो कि ये वाला सवाल था जिसमें मैंने ये वाली टेक्निक अप्लाई की थी, वो कभी गलत नहीं होगा. Got it? Is this clear, everyone? Part C. Part C कहता है कि the wavelength of light has now varied. This causes a variation in the distance x between the centers of the two bright fringes. ठीक है, समझ आती है बात की कि wavelength change करेगा तो fringe separation change होगी. The wavelength is increased from 400 to 700. Numerical values are not required. Sketch a graph. So guys, you know x is proportional to lambda, क्योंकि x का फॉर्मूला है lambda d over n. ना उसने d को छेड़ा है और ना उसने a को छेड़ा है, so d और a कांस्टेंट हो गए. So x is proportional to lambda. अब और से देखना और सोच समझ के बताना कि x proportional to lambda. Everybody knows that this is going to be a straight line. बट क्या ये स्ट्रेट लाइन 0 से शुरू होगी या नॉन जीरो नंबर से शुरू होगी? सोच के बताइएगा. And will this be a straight line up or will it be a straight line down? सोच के बताना है. शाबाश. y इंटरसेप्ट होगा. शाबाश. तो आपने किसी भी जगह पे एक y इंटरसेप्ट शो करना है और इस लाइन को खींच के सीधा ऊपर ले जाना है. मेक सेंस? वेल डन. चले जी आगे. क्वेश्चन नंबर 6. How do we define the potential difference across a potential difference क्या होता है? Potential difference is defined as the work done per unit charge in driving it. आप लिख देंगे in driving it between 2 points across a component. Make sense? कि वो जो आपने मेहनत करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस मेहनत, वर्क, जूल पर कूलम, मेहनत जो करनी है चार्ज को इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचाने में, और जितनी एनर्जी लूज होनी है पर यूनिट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ड्राइविंग इट बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस अ कंपोनेंट. गॉट इट? इज दिस क्लियर? All right. Now, part B, the variation with potential difference V of the current I in a semiconductor diode is shown in figure 6.1. Figure 6.1 को use करके qualitatively बताओ how is the resistance changing between 0 and 0.25. So ये 0 है और ये 0.25 है. बताएं जी, कोई current नहीं है. There is no current. What is the resistance? Current is 0. Is the resistance 0 or is it very small or is it very big? मीना वो 0 नॉन 0 इसलिए है क्योंकि आपको पता है एक्स इज प्रोपोर्शनल लैम्डा, और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलरेडी आपकी वेवलेंथ 400 है, तो 400 पे कोई ना कोई सेपरेशन तो होगी ना बच्चे.
400 पे कोई ना कोई सेपरेशन तो होगी. अगर वो 0 लिखता यहाँ पे, 0 वेवलेंथ, तो फिर मैं उसको 0 0 से स्टार्ट करता. बट 400 का मतलब ऑलरेडी कोई सेपरेशन और उसके बाद बढ़नी है 700 तक. दिस वाज प्रीवियस पार्ट. शाबाश. सो जवानों याद रखो, जब भी करंट जीरो होता है, रेजिस्टेंस इज वी ओवर आई. Whenever current is zero, resistance is infinite. Infinite resistance. Got it? Unlimited. The variation, if any, in the resistance of the diode as V changes from 0.75 to 1. So 0.75 इधर है और 1 उधर है, और 0.75 से 1 तक, between 0.75 and 1, the variation, if any, in the resistance of the diode as the voltage changes from 0.75 to 1 volt. बताएं जी. शाबाश. ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे, आपका करंट इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, and as a result your resistance will decrease through the diode. So the variation, if any, in the resistance of the diode as V changes from 0.75 to 1, you will say that the resistance of the diode decreases. नहीं बच्चे, increase नहीं हो सकता. resistance increase कैसे करी? करंट बढ़ रहा है. आपको खुद सोचो, you are tilting towards the current axis. जो करंट एक्सिस की तरफ टिल्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, ज्यादा नहीं होती. ग्रेडियंट इज नॉट आर जजा, ग्रेडियंट इज 1 over r. इट्स IV. ये IV ग्राफ है. IV ग्राफ का ग्रेडियंट इज 1 over r. याद रखना है, VI ग्राफ होता है तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस देता है. और खुद सोचो और याद रखो, मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आप करंट एक्सिस की तरफ टिल्ट करते हो, जब भी आप करंट एक्सिस की तरफ टिल्ट करते हो, तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है. गॉट इट? इज दिस क्लियर एवरीवन? मुर्सलीन, डायोड की रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज करती है. सही है? डायोड डज नॉट बिहेव लिनियरली. आगे आ जाए, पार्ट सी. A battery of EMF 12 volt is and negligible internal resistance connected to a uniform resistance wire XY. A fixed resistor and a variable resistor are shown in figure 6.2. इसको गौर से देखो जी. अच्छा, so 2.7 एम्पेयर का करंट है कमिंग फ्रॉम द बैटरी. एक 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस वायर लगी हुई है. 2.7 एम्पेयर करंट इधर है, 1.5 एम्पेयर करंट इधर है. पहला पार्ट बताएं जी. पहला पार्ट, व्हाट इज द करंट इन द रेजिस्टेंस वायर? व्हाट इज द करंट इन द रेजिस्टेंस वायर गाइस? Is the current 1.5? Is it 2.7 or is it something else? Shabash. The current in the resistance wire. इधर करंट निकालना है. कितना करंट है इसमें? ये 2.7 एम्पीयर इधर आ रहा है. फिर बताने आपने क्या हो रहा है. शाबाश. Well done. 2.7 minus 1.5. 1.2 amperes. Determine the resistance of the variable resistor. Okay. अब मुझे ये बताओ जवानों कि वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या स्टेप्स होंगे. आपको ये 12 वोल्ट नजर आ रहा है, ये 12 वोल्ट 5 ओम और इस वेरिएबल रेजिस्टर को पूरा पूरा मिल रहा है. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वोल्टेज हियर, you will say the voltage over here is 12 volts. Correct?
और ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इस मेटल वायर को भी जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी 12 वोल्ट है, जो इधर वोल्टेज है वो भी 12 वोल्ट है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर? व्हाट फॉर्मूला विल यू यूज हियर? शाबाश। EMF इज इक्वल्स टू I टोटल R टोटल यूज करोगे। शाबाश, वेल डन। EMF कितना है? 12। अब इस ब्रांच में जो करंट है वो है 1.5, और इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 5 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर RB। सॉल्व करें, रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर निकालें। सो 5 प्लस RB विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1.5। पहले तो ये कर लो, 12 को 1.5 पे डिवाइड करो, ये आंसर आएगा 8 ओम्स। फिर RB के लिए 8 माइनस 5 करो, ये आंसर आ जाएगा 3.0 ओम्स। चेक करें प्लीज, क्या ये आंसर आता है 3.0? Are you guys with me on this? Brilliant. Moving on. Wire XY has a length of 2 meters. Point Z on the wire is at a distance of 1.6 meters from point X. अच्छा, वायर XY की जो लेंथ है वो 2 meters है, जो point Z है that is a distance of 1.6 meters. The fixed resistor is connected to the variable resistor at point W. ठीक है, determine the potential difference between points W and Z. आपने हमें ये वाला वोल्टेज निकाल के देना है। कुछ याद आ रहा है? हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए थे ऐसे इन आवर सेशन जवानों, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि वोल्ट मीटर जब बीच में लग जाए तो क्या करते हैं। यू गाइस रिमेंबर? मेरा ख्याल है फहद साहब बहुत टाइम गुजारा था, मुझे याद आ रहा है। अब जब भी एक स्ट्रेट वायर आती है तो हमारे पास हमेशा एक रिलेशनशिप है जो आपको प्रूव भी करना आना चाहिए, मेरी वीडियोस में भी होगा ऑन यूट्यूब, विच इज वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वोल्टेज प्रोपोर्शनल लेंथ, और इसमें हम हमेशा वो लिखते हैं V1 और V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, है ना? अब मुझे ये बताओ कि 12 वोल्ट्स कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताएं जवानों, 12 वोल्ट्स कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 वोल्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर लेंथ को, पूरी लेंथ को, इस पूरी लेंथ को, है ना? क्योंकि ये सेल है, ये इसके क्रॉस लगा हुआ है। और जो लोग जिन्होंने सच नहीं लिया, प्लीज अभी गौर से सुनना, मुझे मैं समझाऊंगा फिर से। 12 वोल्ट जो है वो 2 मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आपका सेल इधर और इधर जुड़ा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ आती है? अब हमने ये निकालना है कि 1.6 मीटर कितनी लेंथ को, कितने वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। क्योंकि हमारा वोल्ट मीटर दरअसल इधर लगा हुआ है ना, एक्स जी और डब्ल्यू के बीच में, तो मैंने इधर से लेकर इधर तक देखना है कि ये वाला वोल्ट मीटर अगर मैं इधर लगाऊं तो मुझे क्या रीडिंग देता है। सो आप ये रीडिंग निकालें जी, ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सो 12 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 9.6 वोल्ट्स। सो ये वाला वोल्ट मीटर 9.6 वोल्ट्स देता है। मेक सेंस? क्या ये क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ कि इसके बिल्कुल सामने जो रेजिस्टर लगा हुआ है, बिल्कुल इसके सामने देखो, इसके सामने जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो 5 ओम वाला है। मुझे ये बताओ ये वाला वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देता है? व्हाट रीडिंग डज दिस वोल्ट मीटर गिव? ये भी आप निकाल सकते हैं। ये वाला वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देता है? ये देगा V इज इक्वल टू IR, करंट इज 1.5, रेजिस्टेंस इज 5। सो 1.5 इंटू 5 करो, क्या आंसर आता है? इज इट 7.5? 7.5 वोल्ट आ गया सबका? अब मुझे बताओ कि ये जो वोल्ट मीटर लगेगा, जो बीच में लगा हुआ है दोनों लाइंस के,
वोल्ट मीटर ऑलवेज रीड्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे 9.6 और 7.5 के साथ? नीचे वाली लाइन में इधर वोल्टेज 7.5 है, ऊपर वाली लाइन में इधर वोल्टेज 9.6 है। तो मुझे बताओ ये जो बीच में वोल्ट मीटर, जो दोनों के बीच का डिफरेंस पड़ रहा है, वो क्या पड़ेगा? जल्दी बताएं। शाबाश, अब सबको समझ आ जानी चाहिए कि क्या क्या टेक्निक है। क्या आपने ऊपर नीचे वोल्ट मीटर निकालनी होती है और सिर्फ उनको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, क्योंकि वो डिफरेंस पड़ रहा है, दोनों लाइंस के बीच में डिफरेंस पड़ रहा है। सुपर वाली लाइन 9.6 पे, नीचे वाली लाइन 7.5 पे। अब मैं कहता हूं मेरे बीच में इनके डिफरेंस पढ़ना है, कितना डिफरेंस है? तो क्या करेंगे? 9.6 minus 7.5। शाबाश। सो दिस वोल्ट मीटर रीडिंग, ये वाली वोल्ट मीटर रीडिंग है, this will be 9.6 minus 7.5 which will be 2.1 volts. That is the answer. और आपने वो सारी जो वर्किंग जो हमने लेफ्ट और राइट पे की है ना, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, या आपने उधर नीचे वर्किंग में हमें शो कर देना। अच्छा जवानों, एक चीज हम लोगों ने ट्राई करनी है, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखोगे, खुद ट्राई करना है इस चीज को, खुद ट्राई करना। कोशिश करना कि V3 निकालो और कोशिश करना कि V4 भी निकालो। ठीक है, कोशिश करना V3 भी निकालो, V4 भी निकालो। मुझे नीचे चैट में बताना है आफ्टर दिस क्लास इज एंडेड कि V3 और V4 की क्या रीडिंग आती है, और फिर मुझे चैट में बताना कि अगर मैं उन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या रीडिंग सेम आती है या डिफरेंट आती है। ये बताना है मुझे चैट में। लीव योर कमेंट्स इन द चैट आफ्टर। हम आगे चल रहे हैं। पार्ट 4, द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज नाउ इंक्रीज्ड by considering the currents in every part of the circuit. Satan explained whether the total power produced by the battery decreases, increases, or stays the same. Okay. मुझे ये बताओ, जब वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो जो करंट है, द करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा? वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर जो है, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा? वो कम हो जाएगा। अच्छा, जब करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर जब करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टर कम होगा, तो मुझे ये बताओ कि जो टोटल करंट है फ्रॉम द बैटरी, क्या वो सेम रहेगा या वो भी कम हो जाएगा? देखो ना, हम कह रहे हैं कि ये जो 1.5 एम्पेयर है ना, ये कम हो गया। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ये है, अगर ये 1.5 एम्पेयर कम हो गया तो ये 2.7 एम्पेयर की जरूरत पड़ेगी या ये भी कम हो जाएगा? और मुझे एक बात और बताओ कि जो मेटल वायर लगी हुई है, क्या इसमें करंट सेम रहेगा या ये इसका करंट डिफरेंट हो जाएगा? ये जो वायर लगाई है हमने मेटल की, क्या इसमें करंट जो है वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? Those of you who are watching and those of you who will be watching, please make sure to like, subscribe, hit the bell icon, and give the video a thumbs up if you're understanding what we're saying here. और मैं छोटी वीडियोस लगाता हूँ ऑन यूट्यूब भी लगा रहा हूँ और इंस्टाग्राम भी लगा रहा हूँ। इंस्टाग्राम का पेज प्लीज जाके फॉलो करो ताकि यू मेन अपडेट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आई है एंड इट्स एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ए लेवल किड्स जो इंजीनियरिंग में जाते हैं। गेम चेंजर अनाउंसमेंट आई है, वो मैं अभी थोड़ी देर में लगाने वाला हूँ। सो डू फॉलो। मतलब करियर चेंजिंग है। हमारे टाइम में हम तरसते थे कि ऐसी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई अपडेट आ जाए और वो बस आपकी किस्मत में था, आप लोगों के टाइम में होना था। सो पॉइंट क्या है? द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो वायर है इसमें करंट नहीं चेंज होगा, इस वायर में करंट सेम रहेगा, क्योंकि वायर की ना रेजिस्टेंस चेंज हुई है ना ये वोल्टेज चेंज हुआ है। वायर में करंट सेम रहेगा। इधर करंट कम हुआ है तो पीछे से जो करंट, जो बैटरी से करंट आ रहा है, वो भी कम हो जाएगा। सो व्हेन वेरिएबल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, द करंट इन द वेरिएबल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, द टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी also decreases, the current in the wire stays the same. So जो आपकी बैटरी जो पावर सप्लाई कर रही है,
पावर सप्लाइड फ्रॉम द बैटरी का फॉर्मूला होता है EI. अब EMF कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हुआ, करंट रिड्यूस हो गया. So what's going to happen to the power supplied from the battery? Power supplied from the battery will also decrease. Does that make sense, everybody? Yes. चलें जी, perfect. मेडिकल के लिए भी आने वाली है, इंतजार करें बस, इंशाल्लाह. Question number 7, guys. Nuclei X and Y are different isotopes of the same element. Nucleus X is unstable and emits a beta positive particle to form nucleus Z. ठीक है, X जो है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकालता है, मान लिया. By comparing the number of protons in each nucleus, state and explain whether the charge of the nucleus X is less, same or greater than the charge of. सबसे पहले तो इक्वेशन बनाए जवानों, ये X है, X को लिख लो, X का मास नंबर है A और X का प्रोटॉन नंबर है Z. बल्कि A भी ना लिखो, इसको B और C लिख लो. This is B and this is C. X एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट करता है 0 + 1 और ये Z बनाता है. अब Z का मास नंबर कितना होगा? Z का मास नंबर होगा B बॉल, क्योंकि B - 0 gives you B. और Z का प्रोटॉन नंबर कितना होगा? बताएं जी, ये Z का प्रोटॉन नंबर कितना होगा? Will it be C + 1? Will it be C - 1? What will it be? It is going to be C - 1. Got it? ये हो गया X का रिएक्शन. X और Y दो आइसोटोप्स हैं. X और Y दो आइसोटोप्स हैं. So इसका मतलब है X and Y have the same number of protons, but Y has different number of neutrons T. अब उसने ये बोला है by comparing the number of protons in each nucleus, comparing the number of protons, state and explain whether the charge of X ऊपर चार्ज आ रहा है इसके प्रोटॉन्स की वजह से, is the same or greater than the charge of nucleus Y. बताएं जी, न्यूक्लियस Y और न्यूक्लियस X both have the same. My picture is there. 1 second. ये ले. Both X and Y have the same number of protons. X and Y both have the same number of protons. Hence, the charge on nucleus is the same. अब बात कर लेते हैं Z की. Z के अंदर एक प्रोटॉन नंबर में से 1 माइनस हो गया, एक प्रोटॉन काम में. So Z has 1 less proton than X. Hence, charge on Z is less than X. क्लियर हो गया जी सबको? I hope this is sorted. Now we're on the last part, Javano. Hadrons can be divided in two groups, P and Q. Hadrons are formed from 3 quarks and sometimes from 2 quarks. Hadrons 3 quarks से भी बनते हैं और 2 quarks से भी बनते हैं. 3 quarks वाला कौन होता है?
3 क्वार्क्स वाला कौन होता है बताएं जी? शाबाश। 2 क्वार्क्स वाला होता है मीजॉन, 3 क्वार्क्स वाला होता है बेरियन। और बेरियन के अंदर फिर फर्दर आ जाते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, भूलना नहीं है। सही है। सो 3 क्वार्क्स वाले बेरियन होते हैं। सो 2 क्वार्क्स वाले आर मीजॉन। डिस्क्राइब इन जनरल टर्म्स द क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स दैट बिलोंग टू ग्रुप क्यू। सो इसके अंदर एक क्वार्क होता है और एक उसका एंटी क्वार्क होता है, बस सिंपल। क्वार्क एंटी क्वार्क, दैट इज द क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ मीजॉन। और बेरियन तो आपको पता है अप अप डाउन, अप डाउन डाउन, वैरायटी हो सकती है। गाइस, दिस इज क्लियर? वेल डन, वी आर फिनिश्ड, वी आर डन विद दिस पेपर। सो ये पूरा हमारा फरवरी मार्च का जो सीरीज है 23 वाली वो कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह हमने इसका पेपर 1 जो है वो करना है। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम लाइव तो हम एक पार्ट पहले कुछ पेपर 1 करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में फिर कुछ पेपर 1 करेंगे। गॉट इट? इशू नंबर 7 पार्ट 2। दानियाल, सो एक्स जो था, एक्स ने बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट किया था ना। सो एक्स एमिटेड अ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इन फॉर्म जी। तो जो जी बना बच्चे, जी का जो मास नंबर है वो तो चेंज हुआ नहीं, वो तो वही रहा। ये बी है, ये 0 है, ये बी ही रहेगा। जो जी का प्रोटॉन नंबर है वो चेंज होगा। यहां पे सी है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो जी का प्रोटॉन नंबर क्या होगा? C-1। प्रोटॉन नंबर कंजर्व रखना है ना, तो यहाँ पे C-1 होगा। तो जी के अंदर एक प्रोटॉन कम है, जी के अंदर एक प्रोटॉन कम है। एक्स के अंदर सी है, जी के अंदर C-1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जी के ऊपर जो चार्ज होगा वो कम होगा जी के न्यूक्लियस में। दैट इज द आंसर टू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्लास इज व्हेन? आई विल कंफर्म, बिकॉज अभी मेरी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है। मुझे भी बहुत टेंशन है, मेरी बीवी को बहुत टेंशन है। वो शी वाज लाइक, you're doing a live stream and you're not recording, because she knows that it takes me like infinite amount of hours to record. like yeah, मैंने वो सुबह लेनी थी but I wasn't feeling well। और अब वो ना खबर क्या है, वो खबर तो यार बताऊंगा बाद में। चार्ज इज चेंजिंग बट प्रोटॉन नंबर इज द सेम। दानियाल बेटा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्यों आता है? न्यूक्लियस के अंदर चार्ज आते हैं उसके प्रोटॉन्स की वजह से। एक्स के अंदर 5 प्रोटॉन है, जी के अंदर 4 प्रोटॉन है, तो इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा? डिफरेंट होगा। समझ गए हो? चले, perfect. Guys, any other question? I hope everything is clear. Lovely. Thank you so much for joining in. This has been great. We have finished. And inshallah, do share it with your friends ताकि उनको भी ये फरवरी मार्च का काम हो जाए। हाँ जी, पेपर 1 का लिंक मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, और हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1। आई विल। डन? चले। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मैथ सेम होता है, उसका सिर्फ 4 डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। शुडंट जी बी नेगेटिव? नहीं नहीं, C-1, वो एक प्रोटॉन कम होगा खदीजा। अगर एक्स में 4 प्रोटॉन है तो जी में 3 हो जाएंगे। नेगेटिव नहीं होगा, न्यूक्लियस कैन नॉट बी नेगेटिव। देयर इज नो चार्ज। नहीं नहीं दानियाल, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। सही है, चलो परफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कुड यू प्लीज हेल्प इन पेपर 1? अब पेपर 1 आएगा इसके बाद, इसके बाद पेपर 1 आने वाला है। Do give a thumbs up and leave some comments on the way out, and inshallah I will definitely do paper 1 with you as well। यहाँ पे इसी February March 23 सीरीज का अरीना पेपर का लिंक लगा हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो, नजर आ जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे। I'll be recording, and those of you who are
in the past sessions, you should look out in the next 1 hour, inshallah. Thank you. Take care.